55 lakhs 2 years का joining bonus है. हाँ. Wow. You took a few big purchase decisions. I know I would get the pay jump, so I took it before I got the jump. अभी आपके केस में ऐसे लग रहा है कि आप सिर्फ अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो, बट उसमें present is getting compromised. Hello and welcome to a new episode of Fix Your Finance powered by Cred. आज हमें बैंगलोर में एक 26 साल के टेक ब्रो से मिलने, जिनका नाम है सुमंत, जो रिसेंटली हैदराबाद से बैंगलोर शिफ्ट हुए बहुत बड़ी स्टार्टअप के साथ काम करने. क्या चल रहा है? हाउ इज इट गोइंग? Monday, Tuesday office. I go office and like 3 days I work from home, and बाकी weekend I go out for dinners and spend time with my friends. आपकी पिछली कंपनी में आपका क्या रोल था? पिछली कंपनी में I was working as SD1. इस कंपनी में SD2 Software Development Engineer 2. Okay. So it's a level up. और आप कितने साल से जॉब कर रहे हो? तो 2017 में मैंने पास आउट किया था बीटेक से. तो 1 year आई वर्कड फॉर अ कंपनी. तो काफ़ी बड़ी थी लेकिन पे वॉजेंट सो गुड. सो मैंने मास्टर्स किया है इंडिया से, IIT इलाहाबाद से. अच्छा. देन आई लैंडेड इन अमेजोन. सो अमेजोन में आई वॉज गेटिंग इन हैंड 19 lakhs per year. आफ्टर अमेजोन आई जॉइंड माई करंट कंपनी. ओके. एंड करंटली आपका प्री टैक्स टोटल कॉम्पनसेशन कितना है? So total compensation is around 55 lakhs. 55 lakhs. हाँ. Wow. बहुत पैसे अपने पास. Coming from Amazon, it was like the tech giant it was. So I had more leverage with companies negotiating offers. So Of course. I So that brand negotiated name hard. worked really well for you. Right. So currently ये जो 55 lakhs का जो आपका total compensation है, can you help me with the breakdown? So 37 is base. 4 you get yearly variable pay. Variable pay. Okay. And on top of that 6 lakh is my bonus, joining bonus. Joining So bonus. first year is Nice. 6 and second year is 6. So Also there are 2 years का joining bonus है. हाँ, one is joining, second is retention. Oh wow. Like, and then there is 8 lakh ka ESOP. And after all the deductions and everything, what is your in hand monthly salary? It is around 2.3 I get in hand monthly. Now that you have seen a very big jump and आप 3-4 साल से एक बहुत अच्छी इनकम कमा रहे हो, I want to know your relationship with money. Like most of the times I could not get the things I wanted from my family, so I decided that if I make money, I'll make it big or else I'll not work for something meager. So that was the plan right from like childhood. So when you were staying with your parents, आपको क्या लगता है पूरी आपकी फैमिली का कितने अमाउंट में खर्च निकल जाता था महीना? होम का like I think mostly 4K 5K में हो जाता था. वाओ. एंड आज के दिन आपके इस घर का रेंट कितना है? I'm paying 17K for this house. So that has been a big jump in your life, man. तो रेंट आपका 17,000 रुपये हो गया. उसके बाद आप खाना कैसे मैनेज करते हो? Khana, I have a cook who comes and cooks me for twice a day. ओके. So she charges me 4K per month. एंड उसके बाद जो ग्रोसरीज वगैरह होते हैं उसका कितना होगा? Groceries, I think 4K I spend on groceries roughly. And maid का 1500 for washing dishes and keeping this house clean. इसके बाद तीसरा मेन खर्चा है ट्रैवलिंग. क्या आपको रोज ऑफिस जाना होता है और इज इट लाइक अ रिमोट सिचुएशन? Mostly remote, and on some weeks I go to office to 2 days per week. And my office is close, so it's 1 kilometer from where I stay. So I just walk or I drive my car. ओके. to सो यू हैव अ office, कार. yeah. Yes. ओके. आपने कब खरीदी? I purchased in 1st January 2022. एंड हाउ मच डिड इट कॉस्ट? Cost me something 10.5 on road. 10.5 on road. And did you finance it? So they were offering me 100% loan without any down payment. So I just got it without paying a single penny. A car was in my home. एंड कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था? 7.45. काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट है. एंड कितने साल के लिए आपने लोन लिया है? मैंने 7 साल के लिए लिया है. सो इफ यू आर टेकिंग अ लोन, रिस्ट्रिक्ट द ड्यूरेशन टू 4 to 5 years गोइंग फॉरवर्ड. 7 साल बहुत लंबा हो जाता है. ठीक है. तो इसका EMI अमाउंट कितना है अभी? Around 16K per month. 16K. अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अदर लोन्स आपका? Yeah, I purchased a home in Hyderabad. So I can see कि जो आपको जंप मिला है पे जंप में, you took a few big purchase decisions. I know I would get the pay jump, so I took it before I got the jump. How did you know कि आपको इतना बड़ा पे जंप मिलेगा पहले से? मार्केट में इतना पे मिलता है करके मुझे पता है. Either I would get promoted and get the same amount in my previous work, or if they are not promoting, I'd get to a new org and make the same money. आपके पेरेंट्स उधर रहते हैं अभी? अभी पेरेंट्स रहते हैं and the loan amount is 43 lakhs.
तो उसका EMI आता है 33K पर मंथ। एंड इसका कितना इंटरेस्ट रेट और कितना ड्यूरेशन है? मैंने जब लिया 6.8 था, अभी RBI इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो 8.25 हो गया है अभी। तो सुमंत का सडनली इंटरेस्ट रेट इसीलिए बढ़ा है क्योंकि इन्होंने एक फ्लोटिंग रेट होम लोन लिया है। बैंक एक एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट को अपना बेंचमार्क बनाता है और उसके ऊपर बेस्ड ऑन योर सिबिल स्कोर एंड योर क्रेडिट रेटिंग वो आपको एक किकर देता है कि जितना ज़्यादा रिस्की होंगे उतना ज़्यादा वो इंटरेस्ट रेट लेंगे। अब जनरली ज़्यादातर बैंक्स के केस में जो EBLR है वो अपना रेपो रेट है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI ने रिसेंटली रेपो रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, इसीलिए इनका भी जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ गया है और बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो ड्यूरेशन भी बढ़ गया है। आई थिंक 29 ईयर्स हो गया है मेरा, 20 ईयर से लेकर। EMI इज सेम बट द ड्यूरेशन इंक्रीज्ड। मुझे ये जानना है कि मुझे होम लोन रीपे कर देना चाहिए सिंस मैंने लोन लेके अभी एक ही साल हुआ है, या फिर मुझे इन्वेस्ट करनी चाहिए क्योंकि मुझे 20 साल में ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं मार्केट से। ऑफ कोर्स कि मार्केट में अगर आप वो इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा और साइड बाय साइड आप वो होम लोन कंटिन्यू कर सकते हो। बट 29 ईयर्स इज लाइक अ वेरी बिग टेन्योर, राइट? आप 55 के हो जाओगे तब तक आपका ये लोन चलते रहेगा। एंड क्या आपको पूरी जिंदगी काम करना है कि आपके प्लान्स है कि जल्दी रिटायर वगैरह होना है? आई वॉन्ट टू बी फ्री, फाइनेंशियली फ्री होना है, सो दैट आई विल हैव द डिसीजन इवेंचुअली कि क्या करना है। द फर्स्ट मेजर स्टेप इज टू हैव लोअर लायबिलिटीज, राइट? एंड 29 ईयर्स तो कोई भी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा है। सो जैसे आपने बोला कि आपको ज्वाइनिंग बोनस वगैरह मिलता है और आपका वेरिएबल बोनस भी है और ESOPs भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, तो ये जो भी आपको अमाउंट मिल रहा है आई थिंक आपको ये पे कर करके अपना प्रिंसिपल अमाउंट कम कर देना चाहिए इनिशियल ईयर्स में, ताकि आपका जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाए। तो ये तो आपके हो गए बेसिक एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज। इसके बाद आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस वगैरह क्या है? जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी के तो मेंटेनेंस वगैरह, फ्यूल, ये सब में कितना खर्चा होता होगा? 10K पर मंथ। 10K पर मंथ। फिर बाद में क्या आप वीकेंड वगैरह में जाते हो, लॉन्ग ड्राइव्स वगैरह में आजू बाजू घूमने? 6 to 7K पर ट्रिप लग जाता है। अच्छा। इफ आई एम गोइंग हैदराबाद और टू सम अदर प्लेस। उसके बाद डू यू हैव क्रेडिट कार्ड्स? या आई ओन 3 क्रेडिट कार्ड्स। क्या क्या उसके पर्पस है, क्यों आपके पास 3 है? मोस्टली फॉर cashbacks from multiple websites, Myntra, Flipkart, Amazon. So if you are buying credit cards for cashbacks and offers, then I would recommend you to sign up on Cred, क्योंकि Cred में एक ऐसा फीचर है कि जैसे ही आप कार्ड डालते हो उसमें वो आपको बताता है कि इस कार्ड में 300 अलग अलग ऑफर्स और रिवॉर्ड्स डिटेक्ट हुए। तो इसके हिसाब से आपकी जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है और जब भी खर्चा करते हो यू विल ऑलवेज गेट द बेस्ट डील। तो अभी के अभी आप और बाकी सारे लोग क्रेड को डाउनलोड करो, द लिंक इज इन बायो। सारे खर्चे मिलाकर लोन्स वगैरह सब कुछ, हाउ मच डू यू एंड अप स्पेंडिंग इन अ मंथ? आई थिंक अराउंड 85 to 90K खर्चे हो जाते हैं। तो बाकी का तो बहुत अमाउंट बचा, तो ये सारे एक्सपेंसेस के बाद भी आपके पास काफ़ी सेविंग्स बच जाती है। हाउ डू यू मैनेज योर मनी? So 1 lakh I take and put it in equity, all equity. So I know कि I'm dumb, तो मैं स्टॉक पिकिंग नहीं करता हूँ and I got this from you only. Mid cap index, small cap index, Nifty index and tech index, Nasdaq index. तो इन 4 पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस आई इन्वेस्ट 10K इन चिट फंड। नहीं, डम होने की तो बात ही नहीं यार। आई थिंक सबके लाइफ में कोई कोई एरियाज होते हैं जिसमें आपको ज़्यादा पता होता है, बाकी सारी चीज़ों में आपको नहीं पता होता है। हाँ, तो जिन चीज़ों में आपको नहीं पता, इफ़ यू आर अवेयर दैट यू डोंट नो दीज थिंग्स एंड इफ यू आउटसोर्स दैट टू एन एक्सपर्ट, दैट्स द स्मार्टेस्ट मूव एवर। तो अगर आप इंडेक्स फंड्स ही ले रहे हो तो इंडेक्स फंड्स में AUM देख लीजिए, जैसे आपने बोला वो देख ही लीजिए। उसके साथ एक ट्रैकिंग एरर भी देख लो। ट्रैकिंग एरर इज बेसिकली कि अगर वो इंडेक्स 100 रुपये में और ये मिड कैप, ये जो आपका जो मिड कैप इंडेक्स फंड है वो 99 में, देन द एरर इज 1%, राइट? सो एरर जितना कम हो उतना बेटर है। तो आपके बैंक में पैसे रहते हैं, लाइक डू यू हैव इमरजेंसी फंड? नॉट फंड, आई परचेस्ड गोल्ड फॉर माई मॉम एंड think of it as an emergency fund. In case something bad happens, I'll just take the gold and either sell it off or like give it in the bank and get the gold loan at like the cheaper interest rate. But ideally ये नहीं होना चाहिए कि गोल्ड के अगेंस्ट लोन लेना पड़े। I would recommend for some time try to at least have 1 or 2 lakh rupees in your bank account, because you have liabilities and the economic conditions are also not the best. तो मैं बोलूँगा कि अभी थोड़े टाइम के लिए अगर आप अपनी SIP कम करके एक सेविंग्स रख सकते हो, और वो कहीं भी हो सकता है। क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है?
हैव हेल्थ इंश्योरेंस, टॉप अप 10 lakhs का है और 90 lakhs का वो सुपर टॉप अप पॉलिसी है. What about a term insurance? आई वॉन्ट टू आस्क यू कि हाउ डू आई कम अप विद द राइट अमाउंट कि कितने का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए मुझे. ये कवर अमाउंट फिगर आउट करना बहुत ट्रिक है क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बट फिर भी रफली आई फील कि 15 to 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल एक्सपेंसेस प्लस लायबिलिटीज. तो आप 50% जितना इन्वेस्ट कर रहे हो हर महीने. So are you holding yourself back in some areas of life? सो ऐसा लगता है कि आई शुड स्पेंड बट नहीं कर पाता हूँ क्योंकि आई हैव ए टारगेट इन माई माइंड कि ये नंबर रीच करना है बाय द एंड ऑफ 2023. और इसलिए आई इवन पोस्टपोन्ड ए वेकेशन कि घर वालों को जाना था जयपुर एंड दे वर आस्किंग मी टू लेट्स गो देयर, बट आई टोल्ड देम कि अभी नहीं, लाइक बाद में चलते, बिकॉज आई हैव टू हिट दिस सर्टेन नंबर दैट आई हैव इन माई माइंड. Sir, one distinctive feature about targets is that the finishing line will keep moving. साल के एंड में जब आप वो अमाउंट पहुंच भी जाओगे, आपकी सडनली लाइफ को इतनी बदलने नहीं वाली है. आप बोलो कि इतना हो गया, अब इसमें अब नेक्स्ट स्टेप विल बी समथिंग, या नेक्स्ट टारगेट. ये जो चीज है ना, दैट इज बेसिकली बीटिंग द पर्पस ऑफ मनी. मनी इज एन एनेबलर. इट गिव्स यू द फ्रीडम टू स्पेंड मोर टाइम विथ योर फैमिली, टू हैव बेटर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ एंड टू ऑल्सो सिक्योर योर फ्यूचर. अभी आपके केस में ऐसे लग रहा है कि आप सिर्फ अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो, बट उसमें present is getting compromised. I think I'll start spending on experiences going forward. I will probably not compromise कि I will take that vacation, probably be little more kinder to myself and spend on myself more. You said you want to be financially free early in life. What amount do you think is enough to take it easy? Right now it would be around 3.5 to 4 CR. Next is, if you had an unlimited budget, what would you gift your parents? World tour. World tour. Yeah. How much do you think you will spend on your wedding? Not thought about, but going by friends expenses जितना हो रहा है, like 10-15 तो I think हो जाएगा. Minimum. And the last question is, if money was out of consideration, what would you do for a living? I teach coding to other people, so I really like teaching stuff, so I'd do that. Very nice. I think that basically tells you that you are not very unhappy with what you are currently doing. You are very satisfied. Right. On that note, we are towards the end of the show. Thank you so much, man. And thank you so much आप लोगों ने end तक वीडियो देखा. अगर आप चाहते हो कि मैं आपके भी घर आऊँ, तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, भर दीजिए and we'll get in touch with you. And if you like this video, अभी के अभी like बटन दबा दीजिए and also subscribe to the channel if you are new. Goodbye.